प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि जो आजकल हालात बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, और मैंने आज भी प्रोग्राम में कहा था कि बजाय उसकी इंक्वायरी करने के, हमारे जो वज़ीर आज़म है या दूसरे इदारे जी जो सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ लो। और भाई जहाँ से ये काम शुरू हुआ, पहले वहां से तो पता करो कि बात ठीक है या गलत है। कुछ वीडियो भी इस तरह की लोग डाल रहे हैं, कई कुछ डाल रहे हैं, लेकिन अगर तो ये गलत बात है तो बहुत सख्त गुनाह भी है। हमने अपने प्रोग्राम में अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, और ना हमें नाम लेने की जरूरत है। चलेंगे यकूब साहब हैं इटली से, उनसे भी पूछे कि सर ये सोशल मीडिया पे आजकल वीडियो बहुत चल रही हैं, हमारे खजाने में तो अब वीडियो ही पड़ी हुई है, पैसे पूसे तो मेरा खत्म हो गए, ऑडियो वीडियो ही पड़ी हुई है। जी सारी कौम ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिवें सर ਤੁਹਾਨੂੰ भी अर्ज है कि जिस वे कौम तबाही के दाने ते पहुंच जाती है, कोई भी कौम तबाही के दाने ते पहुंच जाती है। हाँ जी, खासकर मुसलमान जेड़ा गैर मुसलम है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਜੂਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਪੜਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, नहीं बल्कि 27-28 साल की गल है पहले। ते एक बंदे ने कहा यार मैं कल ना सुनिया टीवी ते भाई ना फैसलाबाद पकड़े के ना दो कुड़ी मुड़ा वीडियो उन्होंने बड़ियां ने फिल्म, मैं शर्त लाती, मैं गैरतमंद बंदा जज्बाती है पाकिस्तानी, मैं यार मुसलमान मुल्क विच ये काम नहीं, सब कुछ हो सकता पर ये काम नहीं हो सकता। ਉਹ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ 5-5000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੰਕ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-5000 ਫਰੰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਡੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਕੂਬ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ, ਇਤਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਨੇ ਆ। ਆਪੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਉਹ ਜਨਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਜਨਰਲ ਹੱਕ ਮਾਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਨਰਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਓ, 5 ਚ ਚੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਆਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਅਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਆਸੂ ਥਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫਜ਼ਰ ਵਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ, ਕਾਤਲ ਹੋਣ, ਚੋਰ ਹੋਣ, ਡਾਕੂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਚ ਕੁਝ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਾਤਲ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜ਼ਾਨੀ ਬਦਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਐਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਉਸ ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਕੂ ਬੇਗਾਨਾ ਕੁਫਰੀ ਕਲਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਧਰਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਜਾਲੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਬਲ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਬਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੀ ਜਾਂ ਸਹੀਕ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਯਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮਾਰ ਛੜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੜੇ ਤੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਯਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਟੌਰ ਕਰਨੀ ਡੰਡਾ ਪਕੜਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਪੂਰੀ नहीं भी चलती जवेद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ नहीं मगर ये तो आपके इल्म में है कि काम तो वो कुछ ना कुछ बेचारे कर रहे हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कुछ भी नहीं कर रहे एक टैली पैसेदारी है कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जे ये बंदा कुछ कर रहा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਏ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਜ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਉਹ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 50,000 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੁੱਟਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ जरदारी नो तेने दुआ भरावों ने अपना सलूट मार दिया। अच्छा आप ये बताइए ये तो रोजाना बताते हैं अरशद शरीफ का केस चल रहा है कोई उसको इंसाफ मिलेगा कोई उसके कातिल सामने आएंगे ये बताइए। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਖਾਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਲੇ ਮਰਦ ਤਾਂ ਮਲਕਮ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਤਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੋਈ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਕਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡਰ ਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ 2-3 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਜੋ ਨਸਲ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਾਰੀ ਨਸਲ ਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਹਿਜੜਾ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਕਮਾਈ ਲਿਆਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਦੇ ਲੀਏ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਿਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख्वाजा आसफ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਾਦੇ ਦੀ फोटो नहीं करनी थी। चलो आज चैनल फटाफट आज यदि मुख्तसरी प्रोग्राम बहुत है, इतना ही लेट हो गए थोड़े से, फिर करेंगे 2-3 दिन बाद प्रोग्राम आपके साथ। जनाब तुसी ये काम करो मेहरबानी करो मन जुमराती लाजमी लाइन ते चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी आसम साहब से तुसी दुआ कर सकते हो, उम्मीद कोई ना रखो। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं मगर मैं फिर भी कहूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम कर रहे हैं, टाइम चाहिए, हर चीज़ एक दिन में नहीं बदल सकती, और मैं भी उनको 12 दफ़ा ये मशवरे दे चुका हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, ताज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ 8 अरब रुपया कर्जा हमने देना है, और हमें आगे से कर्जा भी कोई नहीं दे रहा, और हमारे ख़जाने में गंदी वीडियो गंदी ऑडियो ये पड़ी गई है। अब देखते हैं कि किस तरह ये कर्जा दिया जाता है, मगर मेरा कर्जा और लिया जाएगा। ये देने वाले तो हम नहीं हैं इतनी जल्दी, किसी के पैसे भी कहाँ देते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल कुछ तस्वीरें चल रही हैं, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा, और बड़ी अहम है आज की। पहली तो ये है कि जिस साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये अदाकारें जो नाम नहीं उसने लिए, उनमें से 2 अदाकारों ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ये इस तरह नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर अब आनी नज़र आनी शुरू हुई हैं, और कुछ वीडियो भी। ये कहा गया कि जो साहब इंग्लैंड में है उन पर केस किया जाएगा, मगर जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया, मेरा ख्याल यहाँ तक नौबत वैसे भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उससे पहले ये वीडियो जो है मार्केट में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है आज कोई चीज़ तो छुपी नहीं रहती, और जब आपने नाम ही नहीं लिए तो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो क्यों सामने आई, क्या वजह थी, और फिर लोगों ने वो तस्वीरें कहाँ से ढूंढ ली, बेशुमार सवालात हैं। लेकिन ये जो अदालतों के और ये और वो, मेरा ख्याल है इससे कुछ नहीं होता। वजह ये है कि जितने हम पाक साफ हैं पाकिस्तान में, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे चाल चलन है, पूरी दुनिया को पता है, और ये एक दूसरे को धमकियाँ दे के तो सोचना कि पता नहीं मैं क्या वहाँ से कोई मेरे लिए माजरत कर लेगा, मेरे लिए सॉरी कर लेगा, मेरा हाल यहाँ तक हालात नहीं चाहते। अभी मैं आपको 1-2 ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, वो सुनते हैं ताकि आपको पता चले कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। और भी बहुत बुरे हैं, बड़े अय्याश हैं, बड़े बदमाश हैं, लेकिन जितनी मुनाफिक कौम मुसलमाना ने पाकिस्तान की है, दुनिया में कोई दूसरी कौम उतनी मुनाफिक नहीं। झूठ, वादा खिलाफी, जेब कटना, खयानतें करना, स्कैंडल, अब वो बिलियंस के हैं, करोड़ों के हैं, ये जितने आपके यहां हो रहे हैं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई मुसलमान कौम आपका मुकाबला इन कामों में नहीं कर सकती। मुझे जो अफसोस है वो ये है कि हमारे तमाम मुफक्किरीन, तमाम तज्जिया निगार, तमाम मुबस्सिरीन, हम अपनी सूरत हाल का तज्जिया करते हैं तो ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारी सारी तवज्जुहात जो है वो जाहिरी कानून के ऊपर है, वो सुन्नतुल्लाह, वो जो पसे पर्दा मशीयत एज़्दी कार फरमा है, वो जो कानून खुदाबंदी है, उसका कहीं कोई तस्करा। अच्छा, ये मैंने इसलिए डॉक्टर इसरार का आपको सुनाया कि कल कोई एक खबर मेरी नज़र से भी गुजरी कि जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, उनके खिलाफ ऐसे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो लोग इस तरह की बात ना कर सके। इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं, सख्त कार्रवाई के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। आज 4-5 सियासतदान बैठे थे, उसमें ख्वाजा आसफ था, वो शीरी थी जो पीपल्स पार्टी वाली है, शीरी रहमान वो थी, 2-3 और वो मेरा लोग बैठा के बड़ा वो साइंसदान बता रहे थे कि दुनिया में ऐसे होता है, रात को मार्केटें बंद हो जाती हैं, कौन सा मुल्क है जहाँ सारी रात दुकानें खुली रहती है। तरक्की याफ्ता मालिक की मिसाल दी जा रही थी। इन मुनाफिकीन से बंदा पूछे
कि ये बताओ कि पूरी दुनिया में जो आपके मुल्क में हो रहा वो कहीं होता है? ये बताओ, ये सवाल करो। जो सामने बैठे हुए थे हरामखोर, वो सहाफ़ी जो लिफाफा खोर बैठे हुए थे, वो ये सवाल पूछे इनसे। जी। तारीख जब आपका जिक्र करेगी तो आपका नाम दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले, अच्छा, दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले सिपह सलारों में लिखा जाएगा। और उस वक्त कमर जवेद बाजवा की शक्ल देखने वाली थी। आपके इल्म में है कि पता नहीं कौन सी जंग लड़ी उसने, जरा कॉमर्स में लिखिएगा ताकि लोगों की मालूमात में इजाफा हो। होता ये है कि ये जो कुछ ड्रामा किया गया झूठ है सब। अभी मैं आपको वो भी साबित करके दूंगा, क्योंकि मैं नहीं ये कहता, मगर आप ही के लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुनाफकत है, यहाँ पे झूठ है, यहाँ पे हर वो काम है जो गैर इस्लामी है और गैर अखलाकी है, और इंसानियत भी उसकी इजाज़त नहीं देती। अभी आप ये सुने, फिर आपको पता चलेगा। जो लिफाफे वाले सहाफ़ी वहाँ पे बुलाए जाते हैं, वो इनसे ये सवाल पूछते कम से कम कि दुनिया में जो पाकिस्तान की करतूतें आप के ज़माने में हो रही है, सबसे ज़्यादा पैसा आप लोगों के पास है। आपकी बिजली तो बंद नहीं होती, आम शहरी के तो बिल ही आई आते हैं। ये आप सोशल मीडिया पे जाए, वो बताएंगे कितना कितना बिल आया है। तो ये आके वहाँ पे भाषण देने और तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देनी शर्म का मुकाम है। पहले तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ आप मिलकर तो दिखाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक की अदालतें आपके अदालतों पे अपनी पे नज़र डालें, और फिर तरक्की याफ्ता जो ममालिक उनकी अदालतें देखे, वहाँ पे इंसाफ का म्यार देखे। ये डॉक्टर इसरार ने अभी आपको जो बताया, आप वो लोग हैं। अच्छा, अब ये है कि कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुल्क, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट भी खतरे में है, वफाक भी खतरे में है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक ये सारा कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं ये इलेक्शन की तरफ जा रहे। इलेक्शन से पहले एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान जो कह रहा है कि जनाब कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं हम मानेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो नौजवान नस्ल को सामने लेके आए। ये बूढ़ियों को जान छड़ा दो, ये हमारी खुदा का वास्ता इन हरामखोरों से। ये खा गए मुल्क को, ये सब कुछ लूट के खा गए मुल्क का। कोई नौजवान नस्ल सामने लेके आए, उनसे ये फैसले करवाएं, उनको अदालतों तक पहुँचाएँ। अदालतों में जिस तरह मैंने कहा कि फौजी जवान बैठे हैं, इन सब का पहले एहतसाब करे, चाहे उसके लिए 6 माह लगे, 1 साल लगे, 2 साल भी लगे, कोई बात नहीं। आपको इल्म होना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट में कोई अच्छे लोग ले, अब ये होता है कि दूसरे मालिक से लोगों को लेके आ जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी अच्छे लोग मौजूद है, ये नहीं कि मौजूद नहीं है, उनको आप मौका नहीं देते। बाकायदा तौर पर जो भी फैसले हों वो आप उनको मीडिया पे लेके आएँ, लोगों के सामने पेश करें कि ये देखें जनाब, ये हमारे मुल्क में फैसले हो रहे हैं। ये आपको करना पड़ेगा। इंतखाबात आप नहीं करवाते, 100 जूते भी खाने हैं, 100 प्याज भी खाने हैं, खर्चा भी करना, कभी कहीं पे ज़िमनी इलेक्शन, कभी कहीं पे ज़िमनी इलेक्शन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं पे रुकावट, कभी पंजाब असम्बली में रुकावट, कभी MPM के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, कभी कोई बातचीत हो रही है। सबसे पहले ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जिनका करैक्टर ठीक हो, उनका पहले पता करे और फिर उनको ऊपर लेके आए। ये लोग आपको हमारी पाक फौज से मिलेंगे, कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी तो फौज जो है गवर्नमेंट में मुलव्वस रहती है, गवर्नमेंट करती रहती है, मगर ऐसे तरीके के साथ समझदारी का मुजाहरा करे कि तुर्की मॉडल बने। और इस तरह जो पाकिस्तान है वहाँ पे एहतसाब सबसे ज़रूरी है। एहतसाब में जो सदर साहब है उनसे ऐसे आर्डिनेंस बनवाए जाए कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हों सजाए मौत, क्योंकि इनको पालना आप देख ले कि इनके लिए खर्चा मर्चा करना, ये फिर छूट जाते हैं, फिर बच जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है कि इनको सजाए मौत दी जाए और सरेआम दी जाए। कहती रहे पूरी दुनिया जो मर्जी, शोर डालती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको कुछ लोगों को लटकाना पड़ेगा। उसमें मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की पार्टी में पाक साफ है। जिस बंदे को ने भी गलत काम किया हुआ है उसको सजा होनी चाहिए। और आपने देखा अमेरिका में कई रियासतें हैं,
वहाँ पे सजाए मौत दी जाती है, किसी को जहर का टीका लगाया जाता है, किसी को वो गिफ्ट गैस फेंक दी जाती है, वो जहरीली गैस जो होती है, किसी के ऊपर वो अपना कोई तरीका कार। तो ये पाकिस्तान में आपको करना पड़ेगा। पूरी दुनिया कहती रहती है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, मगर वो सजा देते हैं वहाँ। तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपको ये करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। ये जो सिलसिला चला हुआ है, पाक फौज पर इल्ज़ाम है, उनको अपने बंदों को भी सजा देनी होगी। सबसे पहले वहाँ से मैंने कई दफ़ा कहा कि शुरू करें। अच्छा, ये गवर्नमेंट अब नहीं चलेगी, MQM वो झटके इनको दे रही है और हफ्ते बाद फिर झटका चलेगा। ये इसी चक्कर में रहेंगे, कोई आवाम की खिदमत नहीं हो रही। कभी पंजाब में झटके, कभी वहाँ कराची भागे जा रहे हैं जहाज लेके, सारी रात बिलावल हाउस बैठे रहे हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और ये भी इतला है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जी हम आपको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा देर आपके साथ नहीं चल सकते। आप को पता चल चुका होगा कि ये खबर भी गर्दिश कर रही है। ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त बने हुए हैं कि हमें आके वहाँ पे बताया जाता है बिजली कैसे बचानी है, और बिजली आएगी तो बचानी है ना, गैस आएगी तो बचानी है ना। दुकानें 8 बजे बंद कर दें, 4 बजे बंद कर दें, ठीक है, ये होना चाहिए। और ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, पूरे यूरोप में भी 6 बजे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, और एक टाइम होता है कि सुबह के वक्त खुलती हैं। उसमें ये बचत होती है कि आपने देखा यूरोप में टाइम भी बदल जाता है जब मौसम चेंज होता है, इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है। मगर सबसे पहले हमारे ये चीज़ों में बचत के साथ साथ जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे ख़जाने में ये रह क्या गया और ये कैसे हुआ है। अब आगे सोशल मीडिया पे जो कोई सच बोलता है उसको पकड़ लो, और जिस मकसद के लिए उसने सच बोला वो मसला हल करो। अगर ये वीडियो स्कैंडल की बातें हो रही तो उसकी इंक्वायरी करो, बजाय इसके कि वो इंग्लैंड से जिसने ये बात की उसके पीछे लग जाओ। अगर आप में ये कमजोरी तो उसे सामने लेके आए, अगर नहीं तो फिर ठीक है, फिर आप बात करें। लेकिन कोई ना कोई तो बात है वहां पे। ये तो नहीं है कि सबकी पिकनिक जो है चल रही है, मुल्क में पैसा नहीं है, कर्जे पे कर्जा हम ले रहे हैं, अरबों रुपये खर्चे हो रहे हैं, वजीर खारजा कहीं जा रहा है, वजीर फलाना कहीं जा रहा है, इंग्लैंड में ये फैसले हो रहे। तो ये दौलत जहाँ भी खर्च हो रही है, इसके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दें, और ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जो लोग पाकिस्तान में रहें वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, और वरना जो बाहर भाग जाते हैं उनको दोबारा सियासत में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं देना चाहिए। चाहे उन पर इल्ज़ामात हों, कानून का सामना करें। अगर बीमार हैं तो इधर ही मरें, इधर ही रहें। ये नहीं कि जहाज में उठा के दूसरे मुल्क भेज दो और वहाँ जाके वो फिर 4-4 साल उनके इलाज चलते रहे, 5-5 साल, फिर एक और पीछे चली जाए कि मेरी भी सर्जरी होने वाली है तो उसका भी इलाज शुरू हो जाए। ये इलाज नहीं, इनके दूसरे इलाज है जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, उससे ये माशरा ठीक होना है। नाज़रीन, ये डॉक्टर इसरार ने बिल्कुल ठीक कहा। आप देख ले, मुनाफकत हर तरफ फैली हुई है। मुनाफकत का सबसे बड़ा सबूत आप देख ले, रोजाना पंजाब गवर्नमेंट में क्या होता है, रोजाना वफाक में क्या होता है। ये है मुनाफकत के ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, इसी तरह ये चला रहे सब। और फिर दावे ये है, ये परवेज लाई की सुन ले, हमने इस्लाम की खिदमत की। वो भी कौन सी खिदमत की इस्लाम की, पता तो चले। हम अपने पैसों से मस्जिद बनवा रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास पैसे किधर से आए, पहले इसका पता करो। इस पर भी तो इल्जाम है, इमरान खान कहता रहा इसको कि ये डाकू है। अब उस पैसे से मस्जिद बनेगी और हम अपने पैसे से बनवा रहे हैं। अपने पैसे से आप कहाँ से कुछ ये चीजें ला सकते हैं, मुझे बताइए। पता तो चले ना आपके पैसे कहाँ से आए। तो इस तरह ये जितने लोग हैं, मैं सबके खिलाफ हूँ। चाहे वो इमरान खान पे भी इल्ज़ाम है, वो उसको भी सफाई अपनी पेश करनी चाहिए। उसकी बहन पे इल्ज़ाम है, उसको भी सफाई पेश करनी चाहिए। वो सब चीज़ें, नवाज शरीफ को भी सब कुछ पेश करना चाहिए, शहबाज शरीफ को भी करना चाहिए, ताकि सबको एक जैसे जो भी अदल का हमारा निज़ाम होगा उसके मुताबिक सजा मिले। जो जिसने नहीं कुछ किया उसे ठीक है, आप बरी कर लें। जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप देख ले कि इधर ही आप घूमते रहेंगे। इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, स्वाति को पकड़ लो, इस पे जुल्म कर दो, उस पे जुल्म कर दो। इस जुल्म से बाहर निकलना होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाक फौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको किन मुश्किलात का सामना है, और साथ ये भी कि दुनिया क्यों तरक्की कर गई और हम वहीं के वहीं रह गए, क्या वजह हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि आज आप देखिए तुर्की है, मराकश है, दुबई है और भी बेशुमार ममालिक है, मलेशिया है, चाइना है, ये ममालिक हमसे काफ़ी आगे निकल गए, सिंगापुर है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारे जो लोग थे माशरे को ठीक करने वाले, सबसे पहले उलमा का नाम अगर आप ले लें तो उन्होंने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान में मैंने जो चीज़ें देखी दुनिया में नहीं देखी, या हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, हो सकता है बांग्लादेश में भी हों, क्योंकि बांग्लादेश ही पाकिस्तान से लहदा हुआ। लेकिन जब आप दूसरे मालिक में जाते हैं वहाँ पे ना आपको कोई पीर नज़र आता है, ना आपकी कोई किस्मत बदलने वाला नज़र आता है, ना आपकी वहाँ आपको कोई मज़ार नज़र आते हैं, ना कोई झंडे नज़र आते हैं। सऊदी अरब चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग, ये अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीवी पे बैठ के कई प्रोग्रामों में देखता हूँ, ज़ाहिर है कि वहाँ पे बता रहा होता है जी इमरान खान फलां साल में गवर्नमेंट करेगा, फलां के साथ ये सलूक होगा, ये किस्मत का हाल बता रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के। इतने लोग हमारे मुल्क में किस्मत का हाल बताने वाले हैं, इतने पीर फकीर मज़ार हर चीज़ है, फिर क्यों बेड़ा गर्क हुआ है? क्या वजह हुई? फौज है वो जिस काम के लिए आई थी, वो बेचारे जो आम फौजी है वो तो कुर्बानी दे रहा है, मगर जो बड़े लोग हैं उनकी किस्मत कैसे बदल गई, सियासतदानों की कैसे बदल गई, अवाम की क्यों नहीं बदली? हाथ तो सबसे ज्यादा अवाम दिखाती जाके कि मेरी किस्मत में क्या है। असल में ये आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा मैं। आज देखे तुर्की है, कल मैं सुन रहा था कि पता नहीं कितने करोड़ लोग जो है वहाँ पे सैर के लिए किए हैं। उनके पास जब सैर के लिए लोग जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, उस मुल्क में पैसा आएगा और फिर खुशहाली भी आएगी। हमारे मुल्क में पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में जाते डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं वहाँ पे जाएंगे किसी का एयरपोर्ट पे पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया जाता है, कभी एयरपोर्ट पे हमारे पे तमाशा लगा होता है, माँ बेटी को मारा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये चीज़ें हमने अपने माशरे को दी हैं, और फिर हमारे मुल्क में कौन आएगा सैर के लिए? ना हमने कोई ऐसे काम वहाँ पे किए, ना वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों पे लूट मार होती है। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। फिर तो आपने अगर सोशल मीडिया पे अपनी कोई वीडियो डालनी है तो अच्छे हिसाब से डाले, कोई नसीहत हो किसी के लिए, कोई फ़ायदा हो। डराने के लिए जी वो रोको रोको गाड़ी रोको, जो लोग खड़े हैं उनको डराते रहते हैं, कोई मोबाइल अपना पेश कर देता है, वो साहब ही शेर आ गया, शेर आ गया। तो ये झूठ फरेब हर चीज़ में हमने तरक्की की, इसमें मकारी में तरक्की की, 2 नंबर काम में तरक्की की। दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो जिन ममालिक का मैं चंद एक का जिक्र किया है, उन्होंने बता दिया कि अगर हिम्मत से काम लिया जाए और दयानतदारी जो सबसे ज़रूरी है तो हर काम हो जाता है। ये नहीं कि तुर्की में कोई तेल के कुएं निकल रहे हैं। हमारे तो बताते रहते हैं कि फलाने पहाड़ों में सोना है, फलां जगह पे ये है, कभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वो चिन्योट के एरिया में पता नहीं क्या निकल आया है। ये सब झूठ और फरेब के साथ चलते हैं, और इस झूठ फरेब का एंड पे ये हुआ है कि हमारे मुल्क में लोग दूसरे के आने, हमारी अपना खाना पूरा नहीं हो रहा। हमने कोई ऐसी सैरगाह नहीं बनाई, हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते। हमने मज़हब की तरफ जोर दिया, कवानीन ऐसे बना दिए मजहबी तौर पे। कल भी सदर साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान में अक़लियत जो है वो महफूज है। नहीं भी पाकिस्तान में कौन से महफूज है अक़लियत? आपके भी तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें सामने आती रहती हैं, कभी कोई वाकया, कभी कोई, अब क्या गनाने आपने मीडिया पे बेशुमार दफ़ा देखे होंगे। और फिर ये जो ममालिक आगे निकल गए हैं, इनमें एक ये खूबी थी कि इन्होंने एक कौम बन के आ गए
निकलने की कोशिश की। आप ईरान चले जाएं, ये यूट्यूब पे जाएं, ईरान की सड़कें देखें, ईरान की दुनिया देखें। हमारे साथ ही लगता है ना, मुल्क दूर तो नहीं है ना। ठीक है, उनके पास तेल है, सब कुछ है, मगर उस कौम में ईमानदारी भी है और वो एक कौम बन चुके हैं। ईरान एक कौम के तौर पे उभरी है, शुरू से एक कौम है। हमारे क्या है, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये बलोची, ये फलाना, इसको पकड़ लो, उसको इधर आने नहीं देना, ये चीजें हमने सीखी। क्यों नहीं हम एक कौम बन सके? मजहबी तौर पे आप देख ले ना, हमारे मुल्क में कोई मजहब का पता चलता है। सारा दिन हम फतवे देते रहते, फलां काफर, फलां काफर, फलां काफर। ये यूरोप में भी लोग बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी यही काम चल रहा है, हर चीज को मजहब में ले आते। कल भी मुझे कोई ने कॉमेंट्स में लिखा, हर एक बात हमारा होता है कि हम मजहब की तरफ दौड़ के जाते हैं और बाद में जाके उधर, अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो कुछ चीज मिलती भी नहीं है बाद में। ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि हमारी जो अदालतें हैं वो शुरू से अदल नहीं कर रही। अगर मेरे से पूछे तो जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ मशरकी पाकिस्तान से, उस वक़्त के बाद ना पाकिस्तान की इज्जत रही, ना वकार रहा, और ना ही आपके पासपोर्ट की उसके बाद कोई इज्जत रही। बट योग के दौर में जो पुराने लोग, उनको पता ही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप के मुल्क में किसी में भी आना होता, एंट्री होती थी। अब कोई वीज़ा भी नहीं देता। कल मैंने पूछा कि गैम्बिया का वीज़ा लगाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो वो भी मेरा काफ़ी कुछ मांग रहे थे। ये हालत हमारे मुल्क की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना है, अभी तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मायूसी भी गना है। अब ये कहा जा रहा है, ये 13 पार्टियों की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको, कि अगर आपने इमरान खान को जेल में न डाला, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बची रहने दें और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बची रहे, वरना हम IMF के सामने कुछ और ड्रामा करेंगे और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान पहले ही दिवालिया है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है, आप इनको कि आप जो करना करें, इनको भागने ना दें, आप इन सबको पकड़ लें। इनकी दौलत जो है उनको कोई कि अपनी लेके आए, जो इनके पास ज्यादा दौलत है कहाँ से आई है, इनकी इनकम क्या थी, उस हिसाब से जरा इनकी इंक्वायरी शुरू करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज किस चीज की धमकियां दे रहे हैं आपको, और ये आपको करना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, अगर आप इस कौम के साथ ये नेकी कर जाएंगे तो कौम आपको बड़ी इज्जत देगी, इतनी इज्जत देगी कि आप सोच नहीं सकेंगे। आपके वहम में भी नहीं होगा कि ये कौम इतनी इज्जत करने वाली है। सिर्फ इनको एक ऐसे अच्छे इंसान की जरूरत है। और ये ना सोचे कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा। आपने ये मुल्क ठीक करना है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान को ठीक करना अंदर से, और फिर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते। फिर कोई मुल्क हमारे पे हमला नहीं कर सकता जब हम एक कौम बन जाएंगे। और एक कौम बनाने के लिए ये गंदे अंडे जो हमारे मुल्क में हमारे ऊपर बैठा दिए गए हैं, इनका हिसाब करना है, इनका एहतसाब करना है, इनको सजाएं देनी है, इनके साथ वो चाइना प्रोग्राम करना है, इनके पैसों से वो गोली भी इस्तेमाल करे जो जिससे इनको सजा मिले। फिर आप पाकिस्तान ठीक कर सकते। पाकिस्तान क्योंकि इतने जो बुरे हालात में जा चुका है कि ना हमारे लोग आप पे इत्मीद करते हैं, ना बाहर की कौमें इत्मीद करती। हमने तमाशा अपना खुद बनाया हुआ है। आज आप देख ले, ये पाकिस्तान के लोग बाहर आने के लिए ये टिकटॉक बड़ा पड़ा है, सारा दिन वहां पे वीजे लगते हैं, लोगों की एम्बेसियों में जाके वीजे लगते हैं, हमारे टिकटॉक पे लगते हैं। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट देखे जी, ये हमने सिंगापुर का वीजा लगा दिया, हमने मलेशिया का लगवा दिया, हमने फलां लगवा दिया। ये यहाँ यूरोप में आए, अगर किसी मुल्क के वीजे की जरूरत है तो एजेंट नहीं बैठे हुए यहाँ। अव्वल तो मेरा हाल 100-150 ममालिक वैसे इनके पासपोर्ट पे फ्री है, अगर फिर भी कोई जरूरत है तो ये खुद ही लगवाते हैं जाके वीजे। वहां पे कोई बाहर एजेंट नहीं बैठे, पासपोर्ट भी ऑनलाइन या वहां पे जाके जो भी तरीकाकार है वहां बनते हैं। हमने ये चीजें सिर्फ कौम को दी और कोई चीज नहीं। बाहर भी लोग जो आए हुए हैं वहां से आ जाते हैं, फिर बाहर भी वो बेचारे किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ते, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आगाज करें, कौम आपका साथ देगी।
आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था मुशर्रफ ने जजों को अंदर बंद किया था, फिर जजों के लिए कौम बाहर निकली, मगर जजों ने अब हमारे साथ जो सलूक किया वो आप सबके सामने। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले ले, चीफ जस्टिस ले ले, इससे पहले वाला चीफ जस्टिस ले ले, उससे पहले वाला ले ले, कोई भी एक इंसान का बच्चा मुझे बता दे कि जिसने कोई कौम के लिए बेहतरी सोची हो, नहीं आएगा आपको नजर। ये अदालतें बेकार हैं आपके लिए। आपको वो फौजी अदालतें नौजवानों पे जो है उन्हें कायम करना होगा, इनका भी एहतसाब करे, ये बंद करे। ये 100 गाड़ियां आगे पीछे जा रही है, किस लिए जा रही है, क्या करने जाते हैं अदालतों में? ये तमाशबीन साहब, इनके लिए जनाब आपको वही कुरान जो आपने हिफज किया है वही निकाल के बस बैठ जाए, उसके मुताबिक चले और छोड़ दे सब चीजें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का सिलसिला एक चीज भी जो है वो गलत नहीं रहेगी, और छोड़ दे इधर उधर की बातें। जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका, डूबे तो हम पहले ही हुए हैं, और क्या होगा नुकसान, इससे ज्यादा और क्या नुकसान होना, मुझे बताइए। एक बंदा पहले ही मरा हो, उसने और दूसरी तरफा तो नहीं मरना, लेकिन आप पाकिस्तान को जिंदा कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ये मशवरा मान लें कि वही कुरान जो हिफज किया है उसे खोल के बस उस पर अमल करना शुरू कर, सब ठीक हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।